they will ask to mainly and primarily what? Interface and abstract class. Because everybody knows what is class and why do we use class. Suppose I start class. देखो, it is a hierarchy. There is a class, then abstract class, then interface. I say class. What is class? What can have within a class? Why do we use class? Because in object-oriented concepts, I cannot define any function without class. Everything within a shape of class. You wanna go inheritance, again class is needed. You wanna go polymorphism, again class is needed. You wanna go operator overloading, again class is needed. Means every topic is made. You go properties. Now come back to C#. Just after this batch, you go reflection, you go indexer, you go delegate, you go collection. Great topic called collection and generics. You try to keep good knowledge in C#, delegate, collection and generics. You go to any topic of C#, you cannot go without class, because we write our information within a function, we write our program within a function, and function is wrapped within a class. Function is a belonging of class and object is a belonging to class. If object is belonging to function, then I can call function directly by the object. But object belonging to what? Belongs to what class? And function within a class. If function within a class, I can create an object of that class to call that function. If it is in C, I don't want class. I can write the function independently. I can call by the main. I can write the function independently to the class. How? Open C. Open C. Not even though C++. Again C++, again class. Again Java, again class. Go to file, new, console application, give any name. Make function. So function in C independent to class, but in C#, in C++, in C# and Java, function is a belonging to class. So why do we use class? Sir, I said I cannot. Don't change your face. Don't be irritated. So I cannot make any function without class. Even though I cannot go inheritance without class. Even though I cannot go polymorphism without class. Every topic talks about class. Then what is class? It is a place where you can have collection of functions. And every function does individuality as a distinct personality. You can call if you have the class. Now, I make a function void perform. The moment if I write C, I never thought the khayal of class. So function in C is independent to class. And object-oriented concepts in any language which is object-oriented concepts, the function belongs to class or belonging to class. That's why the great man Bala Goswami says class is a blueprint, class is a template. Now you write a code, it is up to you what you want to write. I write simple index is equal to 12 and print f %d comma x. Fine. I want to call this function void
Now, call this function perform. But uncle, I can have multiple functions. I can have multiple functions, but not assorted. I have multiple items, not in a single place. One function, other function, other function. Look at what is object-oriented concepts. One more function. You change the question pattern. Why you want to migrate from C to C Sharp, or C to Java, or C to C++. We cannot have three answers because all three represent a single grammar called object-oriented concepts. Now you make a function called perform1. You change the value here and you call the function control C, control wait. But काश मेरे पास ये दो फंक्शन का प्लेस होल्डर होता, क्या होता बोलो? So that I can logically bind multiple function in a single class. Like you take an example, I make a dog file and put in C drive. Every day I make a dog file, put in C drive. I feel uncomfortable. Can't you collect all the dog file and keep one folder? So what is class? It can classify your work. It can normalize your work. Class tailor, class master, class uncle, class laptop. Okay, if I say class laptop, I can have multiple operations belonging to laptop. I can make a function called shutdown. I can make a function called volume plus. I can make a function called fragmentation of RAM, hard disk or defragmentation. I can have multiple functions belonging to which operation called laptop. So why do we use class? I can easily organize the work and keep in one placeholder called class. It is a blueprint. What is blueprint? There is a blue place, nothing is there. There is a notice board, is called blueprint, and you can have one notice board for holidays. You can have a notice board, notice clip on the same board. Class is a blueprint, means class is empty. Shall I learn class or shall I learn function? No. First you learn the function, then wrap in within a class. So sometimes to say class is a blueprint, it is impressive. But you have to convince him why it is called blueprint. There is a notice board having a blue shadow without any notification called notice. It's a worst. It's just empty area. So if you have got a place called notice board area, every day or not even though every day, in a week you have to have certain schedule on there on a notice board. It is a template. You can have any items. Sometimes we say class is a template. Really, it is a template. Happy birthday to whom? There is a greetings card for whom or to whom? By whom? To write to and from. Otherwise, if you don't write to and from, it is a template. It is a totally template. The great man says Balaguru Swami class is a template. We cannot avoid this statement. But I say class is a keyword to create a user-defined data type. But he says in an interview forcefully, Sandeep, why Balaguru Swami says class is a blueprint? Blueprint means it is an empty area, you can give any dimension. Kitchen is a blueprint. In a very early morning, totally blueprint. Go to kitchen with a purpose. Not today. It is behaving as a non-veg or veg.
It is a template. It has several items, but what you want to basically develop or create or make. So what do you mean that like a class can be given any dimension? Yeah, it is mechanical can use class, doctor can use class, property owner can use the class, Sandeep as a faculty can use the class. Means I can provide a dimension to class, and every function of that class is doing the multiple operation belonging to single class called journey or called class doctor. अभी दो फंक्शन हो गए, अब बताइए दो फंक्शन कहाँ जाएंगे इस वक्त? किसी एरिया में जाएंगे, उसका कोई नाम है तुम्हारे पास? अभी तो नहीं। वो सामान कहाँ है? पापा घर में। बेटे घर में कहाँ है? कोई जगह है? अगर फंक्शन बिना क्लास का तो सोचो क्या है? ऑर्गेनाइज नहीं है। अच्छा बोलो इंग्लिश, ओरिएंटेड नहीं। दिस क्लासरूम इज ओरिएंटेड। क्यों? सारे बच्चे बीटेक एमसीए के, मैं किसी अलाउ नहीं करूंगा जो बच्चे बीए बीकॉम के। आप डिफरेंट है। मैं एज ए फ्रेशर बात कर रहा हूं। अगर एक फ्रेशर बच्चा मुझसे अगर डॉटर सीखने आता, आई डोंट थिंक सो कोई बेनिफिट होना है। बिकॉज अगर वो अप्लाई करेगा जॉब के लिए अंकल, तो उससे पहले क्या मांगे? बोलो डिग्री मांगे। बच्चे आते हैं, मैं मना कर देता, मैं नहीं करा सकता तुम्हें कोर्स, तो तुम अप्लाई नहीं कर पाओगे। There is a prerequisite. Uncle this has gone. He's learning for himself, for his own motivations, and to guide someone. Nobody can ask at this stage, what was your qualification? His knowledge, maturity is called basically what qualification, am I right? तो बंदा मुझसे आके मेरा क्वालिफिकेशन पूछता है, मैं बहुत गुस्से में आता, मैं करूँ क्या? अब उसे कन्विंस करो मैं क्या कर रखा हूँ। At one stage, I want your output, not your qualification. When it's initial stage, I really require what your qualification. Come back to point. I have got two function, baby. बिल्कुल नाम बदल दो, बिल्कुल बदल दो। मोटर बिल्कुल बदल दो, बिल्कुल नाम सेपरेट कर दो उनका, बिल्कुल सेपरेट, बिल्कुल। इसके लिए कुछ और इसको बिल्कुल अलग अलग करो और इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। यहां से शुरू करो बेटे। सी क्यों ये कहलाया प्रोसीजरल लैंग्वेज? इसे बोलते हैं डेटाबेस में डिनॉर्मलाइजेशन। एक ऐसा अलमीरा, दिमाग खराब, उसी के अंदर शूज भी है और आपका पैंट भी है। एक प्लेस होल्डर में, एक प्लेस मेमोरी ब्लॉक में दो फंक्शन है, अब बिल्कुल इंडिफरेंट मोड के। मेमोरी तो बनेगी, ब्लू प्रिंट तो बनेगा, शैडो तो बनेगी, पर उसमें दो इंडिफरेंट फोटो क्यों है? मैं आपका एल्बम देखा, बड़ा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। कुछ फोटो आपके हैं, अच्छा लगा, आपके फैमिली से कंसर्न है, काफी अच्छा लगा। अब इस एल्बम में आपके रिलेटिव का फोटो क्यों है? बिल्कुल इंडिफरेंट रिलेटिव का। ये कैसा एल्बम है यार? क्या हो गया? मैं बस कुछ चेंज कर रहा हूं यार। इट इज ए ब्लू प्रिंट, एल्बम इज ए ब्लू प्रिंट। उसमें फोटो डालना शुरू करो। बस सारे जो फोटो डाले हमने, लगा ये मुझसे रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स वाई क्लास इज ए टेम्पलेट, क्लास इज अबाउट ब्लू प्रिंट। तो एल्बम क्या है बेटे? टेम्पलेट है, जैसा डालोगे वैसा ढल जाएगा। बट ऐसा कोई फोटो मत डालो जो मुझे आपसे पूछना पड़े ये कौन है। तो उनके फैमिली का फोटो उनके एल्बम में डालने दो ना। तो क्लास इज ए टेम्पलेट। एग्जैक्टली। अब बेटा पहले बताइए, दो फंक्शन एक ही मेमोरी प्लेस में क्यों जा रहे हैं? इससे अच्छा होता आप दो मेमोरी प्लेस बनाओ और एक मेमोरी प्लेस में सारे फंक्शन एक ही नेचर के हों। नाम सुन लो। अब आपसे करेगा बहस, को एग्जांपल दो। सर
डेटाबेस के 3 काम करने हैं। कौन कौन से? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सर्च। फंक्शन का नाम सुनोगे? डोंट माइंड, सुनो। एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, सम निकालना है, एग्जीक्यूट स्केलर। तो बता तीनों फंक्शन किस क्लास में? क्या 3 क्लास में है? ये तीनों फंक्शन एक ही क्लास में है, एसक्यूएल कमांड में। तो क्लास से तुम क्या अचीव करते हो? ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज करना। क्यों माइक्रोसॉफ्ट ने ये 3 फंक्शन बैठे 3 डिफरेंट क्लास में क्यों नहीं डाला? इससे क्या होता है? एक प्रोग्रामर को 3 क्लास का नाम याद करना पड़ता है। तो बेटे ऑर्गेनाइज नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं ओरिएंटेड नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है। मैं तुम्हारे काम से खुश नहीं हो यार कि तुम ओरिएंटेड नहीं हो। तुम्हारा आउटपुट मुझे पसंद नहीं आ रहा है आजकल। पहले आप जाके देखो डिक्शनरी में ओरिएंटेड का मतलब क्या है। दिस बिल्डिंग मैन आउटपुट ओरिएंटेड, बिल्कुल सही है। ये बंदा आउटपुट ओरिएंटेड है। एग्जैक्टली। मैं सेंटर में बिल्कुल बदतमीजी पसंद नहीं कर सकता। तो कोई भी बंदा सेंटर में क्यों ना, आई एम आउटपुट ओरिएंटेड मैन बिकॉज मैं ऑर्गेनाइज्ड हूं। अगर नहीं होता, भगवान इतना मुझे खजाना नहीं दिया होता, तो मैं कहीं ना कहीं एक अपने काम को ओरिएंटेड लेके चलता हूं। तो क्लास अगर है तो उससे ओरिएंटेड होना पड़ेगा। कैसा ओरिएंटेड? आउटपुट ओरिएंटेड। अगर एक आदमी है तो उससे आउटपुट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। Because there is a word called expectation, and how you can have expectation if you are what? Output oriented. If any human is there, he has to have certain output. Otherwise, he is a sick and weak man. If he is output oriented, then he can provide a service. Am I right? That's why the great man says, Jeevana Sita says, Rajiv Yadav says, class is a service, because he is very output oriented. Am I right? अब आधे घंटे बैठा राजीव यादव के साथ, नॉलेज का धारा प्रभाव को मिलना शुरू हो जाएगा। अब बंदे के साथ बैठते ही नॉलेज फील होती है। इसका मतलब उसकी जर्नी ऑफ लाइफ क्या है? आउटपुट ओरिएंटेड। और आप उससे कुछ और बातें करो, उठ के बाद चला जाएगा, सीधे उठता चला जाता है। जहां आप मनमोहन सिंह की बात कर दो या पॉलिटिक्स की बात करो, वहां से उठ के चला जाता है। क्यों? वो उस चीज का आउटपुट ओरिएंटेड नहीं है। तो क्लास इज ए अंकल, ब्लूप्रिंट, कोई गलत नहीं है। क्लास इज ए टेम्पलेट, कोई गलत नहीं है। बट जीवन सीधा के लेवल पे ये वर्ड बोलना, उसका अपना एक्सपीरियंस काफी लंबा है। वो बोलता है क्लास इज अ सर्विस एंड एवरी मैन इज अ सर्विस। इफ मैन does not provide any output, I don't think so why he has born in this world then. एक आदमी अगर बिना पर्पस का जीता है, वो फिर आदमी नहीं है। उसके रहने और इन्हें कोई आपको फायदा नहीं। और पर्पस को जीने के लिए आपको आउटपुट ओरिएंटेड होना पड़ेगा। एक आदमी एक दिन में 15 काम इन डिफरेंट तरीके से करता है बेटे, वो आदमी आउटपुट ओरिएंटेड नहीं है। क्यों? वो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स है एंड मास्टर इन नन। हम मल्टीपल काम करते हैं रिलेटेड टाइप का, बट एक दिन में मल्टीपल काम डिफरेंट नहीं कर सकते। जैसे आई डोंट डॉक्टरशिप, आई डोंट नो एडवोकेट लेवल, आई डोंट अंकल लेवल प्रॉपर्टी एंड ऑल, आई डोंट नो हाउ टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस एंड ऑल। आई प्रोवाइड मल्टीपल टास्क इन अ डे ऑफ सेम टाइप। एम आई राइट? So why we make a class? You can organize your work, baby. You can organize your work. चलो इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ये तो कॉल अंकल हो ही गया। अब यहाँ नाम बदल दो इसका। इसका नाम था PHEATUR। अब देखो ना अंकल, इससे क्या होगा? एक मेमोरी ब्लॉक में 2 फंक्शन बैठे हैं और दोनों बिल्कुल क्या बोलो, इन डिफरेंट है।
कितना अच्छा होता, मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक बनते और मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक में मल्टीपल फंक्शन होते, सेम बिहेवियर। कनेक्शन को ओपन करना, क्लोज करना, दिमाग लगा। अभिषेक श्रीवास्तव, आप दिमाग लगाओ। फंक्शन कनेक्शन को क्लोज करना, ओपन करना, ये दो फंक्शन बताओ। इसको कमांड क्लास में क्यों नहीं? नाम से नहीं पता सकता, अगर एक कमांड मतलब क्वेरी और कनेक्शन ओपन कर या क्लोज कर। इन्होंने कनेक्शन को ओपन और क्लोज करने के लिए अलग ही क्लास बना दी। जाओ, you go to Amity, you go to my CMOSIS, you go to Roorkee Engineering College, you go to any cultured family, हर चीज का एक टास्क है। You go to Bank of SSI Bank, हर काम को करने के लिए केबिन बनी हुई। वो क्या है? क्लासिफाइड है। और अगर क्लासिफाइड है, डेफिनेटली क्या होगा? आउटपुट ओरिएंटेड होगा। और उससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क होगा। उससे क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूशन टू वर्क होगा। उससे क्या होगा? परफॉर्मेंस गेन होगा। उससे ये होगा, अगर कोई इश्यू आएंगी, आई कैन इजीली ट्रैप इस केबिन से इश्यू आ रही। डिबगिंग और ट्रेसिंग होगा। उसका फायदा क्या है संदीप? उसकी फायदा की बात कर रहे हो सर? प्रोडक्टिविटी है, इनहेंसमेंट है, स्केलेबिलिटी है, इजली डिबगिंग एंड ट्रेसिंग है, काम को ऑर्गेनाइज करने का मेथोडोलॉजीज है। हर आदमी अलग अलग काम करता है, बट एक आदमी से तुम हर काम एक्सपेक्ट मत करो। मैं अच्छा पढ़ा सकता हूं और मुझे कुछ नहीं आता, सॉरी, और कुछ नहीं आता। कि हर आदमी अपने फील्ड का बोलो क्या होता है? उस्ताद होता है। तो उससे तुमको क्या बेनिफिट मिला? उससे ये मेरी बेनिफिट मिला कि मैं मल्टीपल मेमोरी ब्लॉक बनाऊंगा और अपने मल्टीपल फंक्शन को उसके अंदर डालूंगा। इस कॉल ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। उसका पहला बेनिफिट है ऑर्गेनाइजिंग द वर्क। और उससे पहले ऑर्गेनाइजिंग द वर्क करना क्या है? शादी करनी है घर में, क्लास मैरिज बनाओ। तो पहले अंकल मैरिज नहीं सोचा, छोटा छोटा टास्क सोचा। ज्वेलरी कहां से आएगा? पैसे कहां से आएंगे? अरेंजमेंट कैसे करोगे? पानी वाला कहां से आएगा? और सबको कहां पे डाल दिया? बोलो क्लास मैरिज में। उब्स का बेनिफिट क्या है? बच्चे बोल ही नहीं पाते। उब्स का बेनिफिट है अपने काम को ऑर्गेनाइज करना। और उससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल, ऑर्गेनाइज तो छोड़ो, पहले रिक्वायरमेंट तो लाओ। रिक्वायरमेंट ला के उसको ऑर्गेनाइज करो। अब देखना, एक स्टैक बनेगी, एक मेमोरी प्रिंट बनेगा, वहां दो फंक्शन बिल्कुल इन डिफरेंट लेवल के हैं। थिएटर और मोटर, दोनों में कोई भी क्लास मैकेनिकल अच्छा लगता और क्लास एक्टिंग अच्छा लगता। इससे क्या हुआ? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क हो गया। सारे बंदे कहां भाग रहे हैं? क्लास मोटर के पीछे। ये बंदे बोलो कहां भाग रहे हैं? क्लास एक्टिंग के पीछे। तुम कहां भाग रहे हो? क्लास संदीप के पीछे। तो हर तुम कहां भाग रहे हो? क्लास सक्सेना के पीछे। हर क्या है बोलो? ऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है। अब बेटे यहां आ जाओ। व्हेन टू यूज क्लास। उठो बात। I am giving you better 5 minutes of time, and I want your answers to be to the point and very corrective English and perfect pronunciation. You can have a sense, you can have a better sense, you can think about a better productivity, and not tell me when to use class. Carry on. Best of luck. अंकल, क्वेश्चन TCS का, इसका आंसर वो दे सकता है जिसने MBA करे, मैनेजमेंट और प्लानिंग करी। इसका आंसर एक आपको आर्मी का बंदा दे सकता है। इसका आंसर एक नेवी का बंदा जो डिसिप्लिन से पागल है। व्हेन टू यूज क्लास एंड व्हाट इज इन क्लास उसको नहीं पता। इट इज नॉट इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म एंड ऑल। या कैरी ऑन। बेटा ऐसा बोलो कि लास्ट का आदमी सुने। मैं आपको तो कहूंगा, सॉरी।
class is a user-defined data type, and we can say that it is a blueprint and template. Blueprint is a empty class is nothing. It's an empty class, and by a class we organize we manage the organization of the function. Organize and without class we cannot achieve the organization, and we can't perform the OOPS concept without अरे class. आपको आगे बोलना है इसके आप इसका फीडबैक दो, लड़की सही है गलत है। तो लड़की कल मेरे पास पर्सनली आई थी एंड शी नीड्स जॉब एनी हाउ। ये एक सिंपल क्लास की फैमिली है, तो उसके फादर सिंपल है, शी नीड्स जॉब इंस्टेंटली। मेरे पास 2 जॉब इस वक्त। आप इसके आंसर को सुनो एंड इफ यू फील कंफर्टेबल और शी कैन डू बेटर विद इन अ कपल ऑफ डेज, यू कैन गेट अ जॉब। सो नाउ आई विल स्टार्ट। अब आप सुनो, हमें सुनो। Class is a user-defined data type. Class is we can say that class is a blueprint and a template. We by a class we achieve the organization. Without the class we cannot perform any operation of the OOPS concept like inheritance, encapsulation, polymorphism, etc. The class in the OOPS concept, the class is the most important concept. We can create the object. Class cannot contain any memory in the RAM. By object, it achieves the memory. It like a container that contains the variables and the functions. What is your output? Must be practical. You are getting stuck. So what are mental blocks? अरे बच्चा अंकल के पास रोते रोते आई थी। You have 2 ऑफर लेटर, 2 वैकेंसी है और पैकेज 2.8 का पैकेज, प्रेशर लेवल। वो बंदा बड़ा स्ट्रिक्ट है, चक्कर ही है। See, when you are saying something, first of all, you need to have those points into your mind. As Sandeep sir said, the key is to figure out a couple of points. Number 1, class is a bullet. Make those bullets into your mind. स्पेल कौन बोलना चाहता है? बोलो, तुम छोड़ दो, तुम अच्छा बोल रहे हैं। और कोई? बेटे मैं तुम अच्छा बोलती है, चलो बोलो बोलो। हम चाहते हैं बीच के बच्चे उठे ना कम से कम। When to use class? Whenever I want to organize my work, at that time I will use class. Before the class, there were also the functions in C language, but those functions were not managed. Means suppose you took the example of that theatre and motor. If I want to debug that program, if I want to trace any problem, then I can't easily do that. But with the help of the class, I can easily trace my problem. Means if as you said, class acting, if the error occurred in the theatre function, then I easily come to know that in the acting class, in the particular portion, the problem occurred. So I can easily find my problem. And mental blocks. बेटा बच्ची 12 की है, तो 11 की, तो इनकी एमसीए भी नहीं है। मैं को बेटा पॉइंट आउट नहीं कर रहा। पता है तो जितना समय जॉब सोचने में लगा रही है ना हमारे अंकल, बिल्कुल तेरा सही बनता है जॉब खोजना। बेटा जो तुम्हारा प्रॉब्लम इस वक्त मेरे पास आया है बिल्कुल से, अगर आपकी जगह मैं भी होता तो मैं भी जॉब सोचता। बट पता है हमें यहाँ पे डिफरेंट क्या रहता, हम पहले क्यों पढ़ते, हमें पेशेंस काफ़ी है, हम धैर्य काफ़ी रखते हैं। मुझे पता है
बिना पढ़ाई को जुगाड़, हम सोच सोच के समय क्यों खराब करेंगे? पता है सारे प्रॉब्लम मेरे साथ हैं, पर सोच के क्या मिलेगा? अगर सोच से अगर मेरा प्रॉब्लम खत्म हो जाता तो कल से बैठ के सोचते हैं सारा टाइम। बेटा मन को शांत कर और फटाफट टॉपिक को ऑर्गेनाइज करो और चलते बनो जॉब खोलने की। बट आपको मैं डांट दूंगा, गाली दे दूंगा, आप इनसे पूछो ये अच्छे बंदे कंपनी के हैं, अभी आर सिस्टम है, ये मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं हमारे। ये सिंपल बोलते हैं यस और मैं आपको मार देता हूँ, डांट देता हूँ, सेंटर से बाहर निकाल देता हूँ। ये क्यों करता हूँ कि वहाँ जाकर ये गलती मत कर, तो यह मेरी शिकायत कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब फिर जॉब लगेगी ना तू मिठाई लेके मेरे पास आएगी। ये ऐसा रूम है यहाँ ऑपरेशन थिएटर वाली बात, ये जितना गलतियां करना है कर, वहां बेटा 2 ही वर्ड चलता है हमारा, राइट? वह थर्ड वर्ड की बात ही नहीं चलती है। देख लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ नहीं होता। अब मैं बोलता दोबारा फिर सुन। सर, there are several reasons and cause I want to go for class. Before starting the class, why do we go for class? I have several functions, but not assorted. Not sorted. Not assorted, not sorted. Like, I have a function called a scan. I have a second function called medical scan. I have a third function called Khet scan. I have a fourth function called laptop scan. I have several functions, or last one is scanning of any documents. I have several functions are not related types. If I run the program, behind the scheme, one stack is built. In this stack, what is stack? It's a memory buffer in a RAM. We have got multiple functions of non-related type in single place called memory, called a stack. It's called placeholder. So, if someone demand, give me X function, I need to go in that stack to search where that function exists in that stack. Last in, first out. This is chaining of box. So we need to search where is my function stands. I know it is a stack, but in which section? I don't know. Can't I do, sir? I take all the functions and easily categorize. It's called group by. I apply group by on doctors, on engineers. So group by is called filtering process. Group by means I don't want to repeat my name n number of times. Sandeep Karan takes a batch in morning. Why do I write every time Sandeep Karan in the first call? Sandeep Karan took 24 classes in a morning. I don't want to repeat his name 24 times. Am I right? So group by can eliminate your names and prevent from duplicacy. True? Similarly, you go for categorizing the functions, extract from that placeholder called memory, called a stack, and keep in separate memory, and assign the better name to that memory or of that memory. Is called class, article, class, broadcast, class, exchange, and every function of that class signify to me. It is understood to me every function is belonging to what? That class. The name says to me class theater or class actor. So every function are of related type, not are the what. Like I say in C, I write printf, I write a scanf.
In C, every functions are kept in header file. Okay? But we have multiple header files now, not single header. Math.h, graphics.h, Pony.h, इनका नाम ले, process.h, and obviously sir, stdio.h. But in graphics.h header file, I am getting several functions represent to what, only what, graphics. So why do we go for class? I can organize the task and keep in multiple places so that I can easily locate my functions. I don't want to call the function, I want to call the class. So if I create an object of that class, I can call entire functions. So by single object, I can call entire function. If I open the door of the almirah, I can get entire items. But after opening, I don't want to get non-related items in that almirah. I feel uncomfortable there. So class is primarily made for, class is mainly made for achieving the normalization or classify the task so that I can achieve simplicity in task, simplified terms, simplified, easy to search, easy to locate, easy to handy, easy to operate, not handy, easy to operate. So if you give me name of the class SQL connection, I can make a sense, okay, it's a class for SQL connection. What function can I have there? Without anyone help, I can make a sense. Simplicity. Okay, it's a class concerned to connection. It can have function called open and close. If I say SQL command, okay, I can pass multiple related queries by SQL command class. It means class is made for organizing the work. Doesn't mean single class is for organizing the work. I required multiple classes. Class vendor wala, class pani wala, class doodh wala, class supplier wala, class marriage, class girl. I required multiple classes. And if you combine all the classes together, it's called output oriented. Because to perform multiple operation, I require multiple output, not a single output. Your diction, your gesture, your body language, your personality, your speaking abilities, and your knowledge. If you combine everything in a single place, it's called output oriented to get a job. But having only knowledge, you want to spell better, you won't get a good job. कैसा रहा? ठीक है? तो आपको ऐसा बोलना है। अब बैठो, ठीक है तुम्हारा। नेक्स्ट, चलो ये हो गया। अब इसका आंसर लिख लेना। अब देखो इसको आप चलाओगे तो आपको दो आउटपुट मिलेंगे। अब इसको यहां से बेटे आप श्रीवास्तव, अब इसको ऑर्गेनाइज करो। कैसे? इसको डाल दो। अब आता मैं करूंगा नहीं। इसको कहां पे डाल दो? किसी क्लास में। इसको कहां पे डाल दो? किसी क्लास के अंदर। अब वो डेवलपर क्या बेटे करेगा? वो मल्टीपल फंक्शन ऐड करेगा। बोलो क्या? इस क्लास के अंदर। फिर इसका बनाएगा डॉक्यूमेंटेशन और क्लाइंट को डेमो देगा। ये सारे फंक्शन क्या है? बोलो इस वाले क्लास में। वो वाला काम का फंक्शन उस वाले क्लास में। सारे क्लास को मिला दिया, बेटे बन गया प्रोजेक्ट। और वो क्या हो गया? बोलो आउटपुट ओरिएंटेड हो गया, वो कॉम्पैक्ट हो गया। मैं उसको ब्रेक करा, ओ बाय गॉड, इसके पीछे इतनी क्लासेस, क्लास सर्किट, ये पूरी आउटपुट है। इसको बेटा खोल के तो देख, इसके पीछे 50 सर्किट चल रही। तो एक जो तुम आउटपुट देते हो ना, जैसे मैं खड़ा करता हूं इसको या किसी एक को खड़ा करता हूं, ये एक बहाना होता है मेरे लिए। मुझे तुम्हारे ईयर्स का एफर्ट देखना है, बिकॉज you really cannot get everything in a night. नॉलेज एक रात की एफर्ट नहीं होती है। तब मैं ये सोचता हूँ, साले ने, तब मेरे मन में गाली निकलता, साले ठीक से पढ़ाई नहीं करेंगे। हाउ मेनी कैन एक्सपेक्ट टू गेट अ जॉब इन कपल ऑफ मंथ्स? जो ये काम 4 साल में नहीं कर करा, ये 4 महीने में कैसे कर लेगा? अगर ये सोच रहा है तो गलत सोच रहा है। क्यों? ये अपने आप को टेंशन दे रहा है।
ये प्रेशर दे रहा है, ये अपने आप को जबरदस्ती अपने से काम निकलवाना चाह रहा है, नहीं कर पाएगा। एक रात में पूरी मकान बन जाए हो सकता है, उसकी ईंट को सूखने के लिए एक रात काफी नहीं है, मैं नहीं मान सकता। मेरा बड़ा भाई खुद सिविल इंजीनियर, हम 10 आदमी को मिलाकर पूरी मकान बनवा दें, बट एक पूरी मकान में पानी एक रात के अंदर सुखा नहीं सकता, इट टेक्स टाइम। तो मैं सोचता जब तुम खड़े होते हो बेटे, मैं तुम्हारे आउटपुट को नहीं सुनता हूँ, मैं तुम्हारे 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन का एक आउटपुट देखता हूँ और लगता है तुम ऑर्गेनाइज नहीं थे इतने सालों में। आई एम राइट अंकल? और तुम अपने आप को अननेसेसरी प्रेशर दे रहे हो, या घर वालों को झूठ बोल रहे हो कि मेरी जॉब 4 महीने और 6 महीने में लग जाएगी। नहीं लगेगी बेटे, कागज पे लिखवा लो। Job is a very natural process. When you get, nobody knows. It's a very natural phenomenon. Because when you have got a job, knowledge, it comes on a face. Right? It comes on a face. And everything encapsulated. But knowledge never be encapsulated. एक बच्चा को तो भूख लगता है, उसकी माँ उसको दूर से देख के पकड़ लेती है। बट बेटे, तुम नॉलेज इनकैप्सुलेट नहीं कर सकते, वो तुम कर ही नहीं सकते। एक्सप्रेशन ऑन द फेस यू कैन नॉट इनकैप्सुलेटेड। तुम मुझसे अपनी बनिया है तो तुम पैसा छिपा सकती है, ज्वेलरी छिपा सकती है, तो तुम चेहरे का एक्सप्रेशन जो है वो छिपा नहीं सकती। इट रिफ्लेक्ट्स। इससे बेटा जॉब तुम्हारी कब लगेगी हमें भी नहीं पता। इसकी सिस्टर जो है लड़की बैठी है, इसके सिस्टर 8 की पास आउट, नालायक ने 2-3 साल पढ़ाया, किसी कॉलेज की लेक्चरर थी शायद, और मेरे पास आई, बोले सर आई वांट टू, मेरे को याद है वो रात 2010 का अगस्त, काफ़ी गर्मी थी उस दिन, मैं सेंटर बंद करने के चक्कर में तो भागो जल्दी घर जाओ यहाँ से। आ गई शाम में तो बोलती है सर मेरी जॉब कब तक लगेगी। मैं उसका प्रोफाइल देखा, ओ भाई गॉड, 8 की बीटेक और 10 का अगस्त और 2 साल का एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। शी सेज आई वांट टू गेट अ जॉब एज सून एज पॉसिबल। मैंने झूठ नहीं बोलना, मैंने सब कहा बेटे जॉब कब लगेगी कोई नहीं जानता, तेरे को एडमिशन लेना है ले, ना लेना है ना। और वही हुआ, आज वो लड़की वहां जॉब कर रही है जहां उसने सक्सेना की जिंदगी बनाई। इसके सक्सेना के पीछे इसकी बड़ी बहन का वो नमूना 2.4 के पैकेज पे था। इसकी बड़ी बहन सोनिया हुडा, वो Q3 गुड़गांव टेक्नोलॉजीज में, उसने ऑफर मारा था सक्सेना, वो आ जा मेरे पास। कहाँ 2.4 अंकल और कहाँ सारे कितना है, कहाँ 6 लाख का। एक क्लास संदीप करण ने उसको पहली जॉब में हेल्प करी, एक क्लास क्या बोलो सोनिया हुडा ने हेल्प करी। तो एक आदमी का एफर्ट मल्टीपल क्लासेस, और सीखने के लिए एक दूध वाला भी काम आ जाता है। हर आदमी क्या बोलो क्लास है, कोई तुम्हारे लाइफ में आ सकता है तुमको सिखाने, चाहे वो पान चना बनना ही क्यों नहीं है। मेरे कहना था बेटे हर का रेस्पेक्ट करो, हर का रेस्पेक्ट। मैं जब छोटा था तो एक नाखून काटने के लिए बिहार में लोग होते हैं अलग से, तो मेरा नाखून काटती है नहीं होती थी। अंकल जो उसको मैंने देखा, मैं उनको बता नहीं सकता, इतनी ओल्ड हो गई थी, उसके हाथ में लाठी और पकड़ ली मेरा पैर में, तो थोड़ा पैर नाखून काटूंगी। उसको एक नाखून काटने में 4 से 5 मिनट लगा। मैं उसको देखता रहा, इसकी आंख, इसके हाथ का हुनर कहाँ चला गया। नहीं काट पाई नाखून, अकेले कोने में बैठी हुई थी, सारे लोग शादी का एंजॉय कर रहे हैं। वो लेडी को मैंने 20-22 साल पहले देखा था, तो वो दिनों 50s के अप्रॉक्स थी, अब तो 70 प्लस थी। तो उसके पास रंग होते हैं ये करने के सब कुछ है, और शी वांट ऑपरेट। मेरे पर्स में 2800 रुपये थे, रखो। तो बोलती है तू तो दे दिया, कल कौन देगा। तो माँ को बोल कर आए जब तक ये है इसको अब हर महीने 500-600 रुपया दे दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, उसके मेरी जिंदगी बनाने में उसका भी एक हाथ है, और ये एक आदमी से नहीं बनता है।
एक आदमी मल्टीपल क्लास के फर्स्ट से बनता है। मेरा पॉइंट, तो आप इतना स्ट्रेस मत दें कि कल आपकी जॉब लगे। बेटे कल कुछ नहीं हो सकता, कल आएगा सुबह, आप वैसे उठोगे जैसे नॉर्मल उठते। इफ यू हैव अ हार्ड वर्किंग फ्रॉम टुडे, यू कैन हैव अ कमिंग 30 years as a better pleasure and better flavor in your life. I don't think so. You're right. You can do anything. सही बोल रहा हूँ अंकल? एक रात से आपकी गलत सोच है। मैं किसी बच्चे को खड़ा करता तो मैं ये सोचता हूँ, बोल नहीं पाता डर के मारे, सर बदल क्या सोचेगा मेरा उल्टा पुल्टा। मैं सोचता हूँ इसकी जॉब इतनी जल्दी नहीं लगेगी। मैं ये देखता हूँ ये कब पकेगा, ये कब खिलेगा, और ये लगता है देख के इसमें भी काफी समय लगेगा। सक्सेना 2008 और जॉब लगाई पहली 10 अक्टूबर में, पहली जॉब। चलो अब कौन सा टूल स्टैक है, इतना अनऑर्गेनाइज क्यों? यू मेक अ मल्टीपल ब्लॉक्स फॉर सिंगल बिहेवियर। तो क्लास से तुमको एक सिंगल बिहेवियर मिलती है जिसको बोलते हो अर्ली बाइंडिंग। चलो नेक्स्ट टॉपिक, कंबाइन चल रहा है हूप्स प्लस सी शार्प, am I right? ये मत करना, सर सी शार्प कहाँ गया मेरा? आप बेटा सोच लो, कोई जल्दीबाजी नहीं, और जो तुम बोलते हो before a function or before a class. But the keyword expect tells us is an expectation that the parent class expects something from child class. But you would say that expectation is same in the runtime polymorphism of the expectation. But in the abstract class, there is a with the expectation there is a must keyword associated with it. So in the abstract class or in the abstract keyword, what is it? There is a rule that a parent class makes for his child class, and that rule is need to be followed by the child class anyhow. Means he cannot avoid that rule. He had to override his rule and override that function which he had made as an abstract. So this is a story of abstract. So what is the abstract? The abstract that is the main difference between the abstract and the interface. That abstract class can be implemented in the only related classes. But with the program related inheritance interface, there is a great difference. In the interface, it can be implemented in a non-related class also. So in the abstract class, there is a rule that is need to be implemented by the child class, and there is a must keyword associated with it. And the most important thing is that we cannot instantiate, we cannot make the object of the abstract class. So that is the most important thing with the abstract keyword. And we can have abstract as well as non-abstract members in a class. In one class, we can have abstract as well as non-abstract functions. what is the rating boss? Say frankly speaking, 6 out of 10. He is reading the series again and again and again. He is lucky in the series. And out of the entire story, I could figure out only 3 to 4 things. anyone? या तुम मत उठो, एक ही मत उठो बेटा, और कोई चांस दो इन लोगों को। बेटा को मैंने क्या कहानी सुनाया, अचानक कुछ नहीं कर पाओगे। वेरी गुड। अरे यार मेरा अटेंशन 1-2 पे नहीं है, जिसको उठना है उठ जाओ। रोहित राहुल नोज अबाउट मी, जिसको उठना है उठ जाओ, मैं मना नहीं करूंगा। Sir, whenever we want any contact relation between two classes, we use abstract class. Abstract class has abstract function, at least one function will be there, and abstract function have to override in its derived class. Means if base class want to write some constant over its derived class, so parent class want derived class, and derived class has to
override the abstract function of abstract class. Means there is a contract relationship between both classes. Whenever there is a contract relationship, we use abstract class. बेटा ऊपर की बनावटी तू मुझे बता, क्या तू गियर चेंज कर सकता है बिना कार्य स्टार्ट किए? जल्द से क्या तू गियर चेंज कर सकता है बिना कार्य स्टार्ट किए? कर सकता है? बोलना। या तू गियर चेंज कर सकते हो बिना कार्य स्टार्ट किए? कर सकते हो। लेकिन जब कार्य स्टार्ट नहीं करोगे गियर का इफेक्ट नहीं आएगा। एक क्लास की डिपेंडेंसीज कहाँ है बोलो? दूसरे क्लास के ऊपर। एक क्लास कंट्रोल हो रहा है दूसरे क्लास से। आप जाओ किसी इंडियन मेडिकल साइंस ऐसे डॉक्टर्स के पास, वो क्या बोलता है? हर पार्ट एक दूसरे से क्या बोलो? रिलेटेड। एक पे इफेक्ट आना शुरू हुआ, ये मल्टीपल पे इफेक्ट करना शुरू कर देगा। तो बेटे एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्यों आया? एक क्लास को कंट्रोल कर रहा है कोई और क्लास, एक क्लास को मैनेज कर रहा है कोई और क्लास। एक क्लास की सर्विस तब चलेगी जब वो क्लास ऑपरेट होगा तब। अभी मैं आंसर नहीं दूंगा, आप सोचो। व्हेन टू यूज ए क्लास एज एब्स्ट्रैक्ट। मैंने कुछ देर पहले कहा था, एक क्लास में मल्टीपल फंक्शन रखो रिलेटेड टाइप का, ये बोलो क्या हुआ? व्हेन टू यूज क्लास। पर एक क्लास में मल्टीपल फंक्शंस हैं रिलेटेड टाइप के, जैसे भी उसने मुझे बता दी, बट ये क्लास आप डायरेक्टली यूज कैसे करो? इफ यू वांट टू गेट अ फैसिलिटेशन और फैसिलिटी you cannot get unless and if you don't pay for anything. आप किसी बेटे किसी होटल के बगल में खड़े हो, देखो जरा सोच के देखो, you want to call a function called मिठाई, you cannot call बेटा, you cannot call. You have to pay the amount for that. So now I want to operate this class by that class. It means this class runs under the guidance of that class. और तुम उस क्लास को यूज नहीं कर सकती, तुम इस क्लास को यूज करो। और ये क्लास तब यूज होगा जो क्लास ऑपरेट होगा तब। अब सोचो, किसी क्लास के पहले बेटा एब्स्ट्रैक्ट लग गया तो क्या होगा? अगर किसी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट लग गया, या तो ये बात पता है ये क्लास का जो ऑपरेशन है कोई, इस क्लास का जो लॉजिक है कोई और लिख रहा है। इफ एनी क्लास इज प्रीसीडेड बिफोर द क्लास कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट, अगर किसी बच्चे के पहले एब्स्ट्रैक्ट लग गया, इसका सारा काम बोलो कौन है? इसकी मम्मी देखती। बच्चा अगर ऑपरेट हो रहा है तो मदर के सपोर्ट से ऑपरेट हो रहा है। ऐसे बच्चे का क्या बनाना ऑब्जेक्ट यार? अगर किसी क्लास के पहले एब्स्ट्रैक्ट लग गया, उसका क्या बनाना ऑब्जेक्ट? क्यों? उसका हर सर्कल बोलो कहां चल रहा है? बोलो बेस क्लास से चल रहा है। तो बच्चे से मैं क्या बात करूं? मैं उसके मदर से बात करूंगा, फादर से बात करूंगा। एक क्लास के अंदर किसी क्लास का चलना, if any class is runs under certain class, that class is called basically what? Abstract class. एक क्लास है, एक क्लास है, क्लास ABC, इसके पास सब कुछ है। बेटे मत देखो abstract क्लास को, मत देखो, don't look abstract class, उसके पहले बेस क्लास को देखो। ठीक है, ये क्लास कौन हो सकता है? आज की डेट या तो मिटी, या तो JNU, या तो JSS, या तो APG, रिनॉट कॉलेज, अच्छे कॉलेज। आप इनको देखो बस। अब तो बोलो, तुम ऐसे बंदे का
बिलोंगिंग बनना चाहते हो। इस क्लास के पास सब कुछ है, he has got everything। अंकल के पास सब कुछ है, तुम इनके बिलोंगिंग बनना चाहते हो, नहीं बन सकते। क्यों? आपको इनके टर्म्स एंड कंडीशन पे चलना पड़ेगा। आर यू रेडी? यू गो फॉर दैट। अगर तुम सेंटर मेरा स्टूडेंट बनना चाहते हो तो मेरा शर्त है आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। If there is a class is having a rich of information, rich by knowledge, rich by everything. Maybe for that class you want to become member, you cannot be. Unless and until you want to follow his word. छोटे मोटे चीजों को मत देखो, टॉप लेवल पे देखो। और सुनना है, अब यहाँ पे फोर्टिस को देखो, जाओ फोर्टिस। कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। मैं छोटे हॉस्पिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां जाओ ऐसे एक एडमिशन ले लो, नहीं कर पाओगे कुछ। आपको 2 घंटे गेट पे खड़ा रहना पड़ेगा, जो इनकी फॉर्मेलिटी है वो पूरा पहले करना पड़ेगा। आप बेटे बड़ी चीजों का सोचो, छोटे मोटी चीजों का मत सोचो। प्रिंसिपल पावर फ्रेंड प्लस क्या होगा, तो या इसको हटा दो। बड़ा मछली सोचो, बड़ी मछली, माय गॉड। डीवी कनेक्शन, नाम ही है डीवी कनेक्शन। सब कुछ इसके पास है, सब कुछ इसके पास है। तो इसका चाइल्ड बनेगा, सवाल नहीं बन सकता, नहीं बन सकता है चाइल्ड। ऐसे बच्चे के जो चाइल्ड होते हैं वो भी टर्म्स एंड कंडीशन पे चलते हैं। जब मेरे फेसबुक को मिलेंगे एक सीएम शर्मा, वो एयरफोर्स से कमांडर है। उनकी बेटी ने निकाला, पायलट निकाला, पायलट बन गई उनकी बेटी। माँ 3 साल की बेटी है उनकी, 23 ईयर्स की। तुम मोटे हैं तो उनके घर भी जाके देखो जरा, इतने टर्म्स एंड कंडीशंस है, आप पूछो मत। वहां जाता हूं तो सूद बाहर खोलो, ये करो वो करो, उनके टर्म्स में चलना पड़ता है मुझे। ऐसे लोगों से मिलकर एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं होता। डिसिप्लिन क्या होता है बोलो? मेंटेन होता है। और मन में रिस्पॉन्स आता नहीं, मन में रिस्पेक्ट आता और बात करने में डर लगता है, राइट? दिसंबर के महीने में भी आप और वो जाते हैं उनके घर पे, दोनों मेरे ससुर हैं, मेरे वाइफ के अपने फूफा जी, तो वो हर को देखते हैं कौन कैसे आया, वो नोटिस करते रहते हैं। और कमांडर इतना इजी पोस्ट नहीं होता, और वो भूल जाते हैं कि बेटी है, क्योंकि मेरे फेसबुक है चारू शर्मा, वो भूल जाते हैं मेरी बेटी। उनके हाँ भी क्या बोलो, बराबर इक्वल ट्रीटमेंट है। आप उनके चाइल्ड बनना चाहते हो, आप उनके मेंबर बनना चाहते हो, सवाल नहीं उठता। उस आदमी के लिए भतीजा भतीजी, बेटा बेटी, भांजी में डिफरेंसेस नहीं होते हैं। उनके सब सारे बराबर होते हैं, सारे बराबर होते हैं। वो पार्शलिटी की बात नहीं कर सकते। जितना अपने बेटा को मानते हैं वो अपने भांजी को मानते हैं। अगर ये मानते हैं इज ए ग्रेट मैन, देन मैन रन्स बाय हिज ओन कंडीशंस एंड वी ऑलवेज थिंक आने वाला जो पीढ़ी होगा वो मेरे कंडीशन के ऊपर चलेगा। और जितने क्लासेस बनेंगे उसके बाद सारे क्या बनेंगे बोलो? एब्स्ट्रैक्ट बनेंगे। तो ऐसा आदमी जो महान होता है, रिच ऑफ इंफॉर्मेशन रखता है, वो क्या है बोलो? इसके पास सुनेगा क्या है? टीवी कनेक्शन के पास इस क्लास से बेटे तू बड़ाकर से क्रिएटिविटी कर सकता है, इस क्लास से तू इसको समझ से क्रिएटिविटी कर सकता है,
इस क्लास से श्रीवास्तव एफ सक्सेस से भी कनेक्टिविटी कर सकता है, हर से कर सकता है। इसका जो चाइल्ड है उसको हर से कनेक्टिविटी नहीं आता है। वो चाइल्ड कौन है? एसक्यूएल कनेक्शन है। 3 चाइल्ड है बेटे, एसक्यूएल कनेक्शन, ओरेकल कनेक्शन और ओरेडीबी कनेक्शन। इनको हर चीज आता है। माना इनका बेटा बहुत अच्छा है, पर जो इनमें क्वालिटी है उसमें 100% हो ही नहीं सकती। जिस दिन ऐसा हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? बोले एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। बोलो क्या? एब्स्ट्रैक्ट। उसका भी चाइल्ड अब इनके रास्ते पे नहीं चलेगा, उनके रास्ते पे चलेगा, इनके बेटे के रास्ते पे। इनहेरिटेंस है। हम ग्रैंडफादर के रास्ते पे नहीं चलते हैं, हम फादर के रास्ते पे चलते हैं। और मेरे फादर जो हैं उनके फादर के रास्ते पे चलते हैं। इसलिए इनहेरिटेंस मेंटेन होती है। इसको बोलते हैं हेरिडिटी। वो क्या बोलते हो? ठीक से बोलो, क्या बोलना चाहते हो? सर, if there is a class wants to become the member of any class, if there is a class wants to become the member of any other class, it means he wants to call his functionality. Child class who wants to become the member of base class. Why? Child class wants to call the what? Base class functionality. But if child class is always calling the base class functionality, it means I am making child as a duffer and dumb. Duffer and dumb. By the very first day, in base class, he writes a business logic for a child class. Why? He wants to give proper dimension, proper shape, so that child class can follow the margdarshan of the base class. CM Sharma says to me कि आपका जब बेटा बड़ा होगा आप मेरे पास छोड़ देना। जैसे मैंने ट्रीटमेंट अपनी बेटी के साथ करा है वैसे मैं आपके बेटे के साथ भी करूँगा। अब देखते हैं इच्छा कैसे नहीं बनता है। बट ये बच्चा जब जाता है वहां पे भाग के चला आता है मेरे पास, क्यों? वो डिसिप्लिन की बात करते हैं, वो डांटते नहीं है, वो डिसिप्लिन की बात करते हैं। बच्चा बहुत छोटा है, इसको इतना डिसिप्लिन में आप रखोगे तो फिर दायरे से एक वो हो जाएगा, फ्रीडम नहीं आ पाएगा। अरे बहुत छोटा बच्चा है, लेट हिम ग्रो, गो इन 9th, गो इन 10th, एंड इट्स मी। Every father is a child class, and every father later on become the what? Abstract class. Initially he gives affection, his love to the child. Later on he gives love and affection to the child with certain conditions. So when to use class? Class can become abstract class. Abstract class can behave as a normal class also. अगर एक child अगर बेस क्लास में सारे रूल्स को फॉलो करेगा तो क्यों एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगा बेस क्लास? बेटे मैंने कहा ना ये क्लास है। आप मान लो जानते हो फिजिक्स, आपको अच्छी खासी फिजिक्स आती है, आप बेटे फिजिक्स के पंडित बन गए। मान लो पंडित, तो बच्चा आपसे सीखने चाहता है क्लास राम आपसे सीखने चाहता है, बोलो कौन सा? फिजिक्स। तो बेटे आप पता क्या खोजोगे? आप उस बच्चे में अपना गुण खोजोगे। बिकॉज आपको चाइल्ड से बोलो क्या हो गया? एक्सपेक्टेशन हो गया। और वो बच्चा अगर आपकी चीजों को फुलफिल नहीं करेगा आप उसको फंक्शन कॉल करने नहीं दो। ठीक है, This class is full of functions. What is function? They can perform certain operations. You know how to call the functions. So you are managing your functions. But if any child wants to call your function, can you allow to call the function directly? No. Unless or until it doesn't follow certain rules and regulations. ठीक है,
Otherwise, child is always willing to call the base class functions. आप बताओ बॉस, क्यों बोलता है हॉस्पिटल मिलने का समय इतने बजे से लेकर इतने बजे तक? बैंक आप 2:05 पहुंच के देखो जरा। आप रूल की बात करोगे, आपको सर वो 2 बजे ऑपरेट नहीं करेगा, दोस्तीबाजी मत खोजो वहां पे। If there is a bank, oh by God, there is a bank full of informations. If any customer becomes a member of the bank, he has to definitely get a service, but he has to pay the amount for getting a service. अब स्टैंड क्लास ने क्या बना दिया? एक बना दिया टैक्स, कुछ एक फंक्शन बना दिया। अब उस फंक्शन को जब तक डिफाइन डिराइव क्लास नहीं करेगा, तब तक डिराइव क्लास बेस क्लास से फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। टीवी कनेक्शन क्लास के पास बेटे क्या ओपन फंक्शन है, मानते हो? जब तक आप कनेक्शन को ओपन नहीं करोगे, तब तक आप गधे एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी कॉल नहीं कर सकते। मैं आपको बेशक कार की चाबी दूंगा, तब दूंगा जब आप कार को मेरे साथ फिल करोगे तब। बेटे यहाँ पे चाइल्ड की बात आती है। हाँ, चाइल्ड कोई भी क्लास इंटरफेस में क्या होता है, जो आपके पास वो चाइल्ड आती है, उसके रूल को फॉलो नहीं करेगी तो वो नहीं होगी। और इसमें ये भी बेटे इसमें क्या है, स्टैंड क्लास का जो रूल है, जो रेगुलेशंस है, जो कंडीशंस है, इट ओनली इफेक्ट टू चाइल्ड्स। जैसे ट्राई है, अब मानो कोई कंपनी है वोडाफोन, अगर ट्राई के रूल को फॉलो नहीं करेगी तो इंटरफेस ही है ना? नहीं बेटे, इंटरफेस नहीं होगा। अगर एक कंपनी का 1000 एम्प्लॉइज और उसके बेटे रूल को फॉलो कर रहा है, ये स्टैंड क्लास है। और और एक कंपनी का मान लो कोई रूल मल्टीपल क्लाइंट्स फॉलो कर रही है, डिफरेंट क्लाइंट्स। जैसे एयरटेल का कोई रूल, एयरटेल के जो सब्सक्राइबर हैं, जो क्लाइंट है, वो फॉलो कर रहे हैं। अगर ऊपर से मोबाइल की कोई रूल बदल गई, गवर्नमेंट का, हाँ ट्रेंड बदल दिया, वो इंटरफेस हो गया, सबको वो इंटरफेस हो गया, वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। नहीं तो जैसे सवाल ये समझ में आएगा। अब देखो सबसे नीचे बोलो कौन एक क्लास है, साला मस्ती मारता है और उसका बेस क्लास तमाशा देखता है। तो बेस क्लास के पास का ऐसा फंक्शन है, अगर वो फंक्शन आप डिफाइन नहीं करोगे, आप बेस क्लास का क्या अपने क्लास के फंक्शन कॉल नहीं कर पाओगे। बेटे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब बेस क्लास एक एज आता है, अंदर तो ज्यादा पता, हमें तो नहीं पता, उतना एक्सपीरियंस मेरे पास नहीं है। एक समय आता है, एक बाप अपने गुण को बेटे में खोजता है और उस पर ट्रस्ट करने लगता है। बेटे चाबी पकड़ ले, बेटे ये यहाँ चला जा, उसको अपने बेटे पे ट्रस्ट होता है और वो जिंदगी में सोचता है यार मेरा बेटा मुझसे अच्छा बने, मुझसे कम ना बने, और इतना करके दुनिया चला जाता है। अब वो बेटा फिर अपनी लाइफ लिखता है। बट एक बेस क्लास अगर टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लिखेगा चाइल्ड के ऊपर, तो रिलेशन जो तुमने बनाई है वो मिस यूज भी हो सकता है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास तब बनेगा जब बेस क्लास उसके फंक्शन को कॉल करेगा, बट कॉल करने से पहले कुछ प्रीरिक्विजिट तुमको फॉलो करना पड़ेगा। आई मीन टू से, इफ देयर इज अ फैमिली विदाउट डिसिप्लिन, इट्स नॉट अ फैमिली। If there is organization without terms and conditions, it's not organization. Abstract क्लास के पास टर्म्स एंड कंडीशंस है। क्या है? हमें डेटाबेस का टेबल कॉल करना है। अब फॉर एग्जाम्पल मतलब मेरे साथ काम की बात करें, डेटाबेस का टेबल ओपन करना है, डेटाबेस का बेटे फंक्शन कॉल करना है, डेटाबेस का टेबल यूज करना है, फंक्शन कॉल करने हैं, प्रॉप कॉल करने हैं, ट्रांजेक्शन कॉल करने हैं, कर्सर कॉल करने हैं। कहे कुछ तुमको मैं कॉल करने दूंगा, पहले तुम क्या खोल के आओ, कनेक्शन को ओपन करके आओ। तुमको बैंक से पैसे निकाल रहे हैं ना, पहले तुम अकाउंट खोलो बैंक में। जब तक आप बैंक में अकाउंट नहीं खोलोगे, आपको बैंक की सर्विस नहीं मिलेगी। इससे पूछो भाई इसका ट्रेन में है, अगर आप टिकट नहीं लोगे, आपको मैं अंदर नहीं आने दूंगा।
You get a point? So derived base class is looking some perspective, some phenomena, some आंशिक व्यवहार in what child class. कुछ चीजें वो कहाँ पूछता है, बोलो अपने बेटे में, नमूना वहां जा रहा है, तो ठीक से वहां बात करेगा कि नहीं करेगा, या तू रुक मैं भी चलता हूं तेरे साथ. एक दो बार गया, अब नहीं जाता. क्यों? उसने काम करना सीख लिया. उससे क्या हुआ? उस चाइल्ड के पास पॉलीमॉर्फिक नेचर आ गया. am I right? जब मैं सक्सेना को नया नया बैच दिया था तो मैं पीछे बैठता था, पीछे लास्ट मैं पढ़ाता था. अब बच्चे इधर देखे, उधर देखे, इधर देखे, उधर देखे, मेरे ग्राफ करके देखे जब नलायक कैसे. If you are teaching in a classroom, you have to have also controlling abilities. What? पढ़ाना कोई बड़ी चीज नहीं है, कंट्रोल करना क्या पढ़ाने से बड़ा चीज. तुमको मैंने कहा बेटे थोड़ा कंट्रोलिंग लाओ अपने आप में, कंट्रोलिंग. लास्ट बच्चा खड़ा कर दो, सीधे खड़ा कर दो. आपको बैच में पढ़ाना भी है, प्लस क्या करना बोलो, कंट्रोल भी करना, सो दैट यू कैन हैव पॉलीमॉर्फिक नेचर. तो बाप पॉलीमॉर्फिक नहीं बना, बेटा बोलो क्या बन गया, पॉलीमॉर्फिक. इतना मस्त हो गया. अंकल आया नहीं आया समझ में? तो डेटा के सामने रख, 50 टॉपिक रख, तू कुछ एक्सेस नहीं कर पाएगा. तुमको मेरा सर्विस चाहिए, पहले ये लेकर आओ. बैंक से पैसे निकालने हैं, पहले अकाउंट ऑपरेट करो. हर 3 महीने पे क्वार्टरली पे इतना अमाउंट होना मस्ट है. एक्सटेंशन ऑफ ट्रेन लेना है आपको, अपने यहाँ टिकट रिन्यू करवाओ. तो उसी टिकट को क्या करवाओ, एक्सटेंड करो. अगर कुछ नहीं है तो रूल्स नहीं है. हर चीज क्या हो, इनकंसिस्टेंट